எங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. நம்ம ஒரு வீட்டில் நம்ம இருப்போம், நம்ம குழந்தைகள் எங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா குழந்தையும் கோயிலுக்கு வந்துதான் ஆகும். அதுக்கு தகுந்தாப்ப நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் பழக்கம் செய்ய வேண்டும். அவங்களுக்கு விரிவான முறையிலே சொல்லித் தர வேண்டும். அது சொல்லி தந்தாதான் அவங்க எப்போதும் இந்த இடத்துக்கு வந்து இறைவனை பெற முடியும். பொதுவாக ஜாதகத்துல பல தோஷங்கள் இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத தோஷங்கள் இருக்கலாம். பரிகாரம் குலதெய்வம் கோயில் வழிபாடு தான். அதே நம்மளுடைய ஐயனார் மற்றும் மதுரையில் கொங்காளி கருப்பு பாப்பாத்தி சுவாமிகள்லாம் நல்ல பழமையான கோயில். பொதுவா நம்ம குலதெய்வம் கோயில் பக்கத்தாப்புல இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம். சில பேர் குலதெய்வங்கள்லாம் ஒரு நாள் ஃபுல்லா போய் இங்கேருந்து போவாங்க, ஒரு நாள் போவாங்க, அங்க போய் இருந்து செய்வாங்க. நம்ம நினைச்சோடு வரக்கூடிய தன்மையில் பூர்த்தி இருக்கின்றது. இந்த பகுதியிலே எப்போதும் வந்து போகக்கூடிய பகுதியாக அமைகின்றது. அதை தவிர்த்து பழனியில போய் சில பேருக்கு குழந்தைங்க அங்க போய் பழனி முருகன் ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது, பார்த்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துல வந்துடும். ஆனா அந்த கோயில்ல பொறுமையா வந்து உட்கார்ந்து எவ்வளவு நேரம் ஆனா உட்காரலாம். அதுக்கு தகுந்த கோயிலை நம்ம எல்லாம் அமைத்து இருக்கின்றோம். இன்னும் நிறைய புறமைப்பெல்லாம் இருக்கு. அந்த வேலையெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு தான் நம்ம விருப்பப்படுறோம். அதுக்கு பல அதிகாரிகள் எல்லாம் உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இன்னும் நிறைய உதவி செய்யணும். நம்மளுடைய வீடு எப்படி இருக்கோ அதே போல இந்த கோவில் இருந்ததுனாக்க நமக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், வரவங்களுக்கும் நல்ல நன்மையை கொடுக்கும், நமக்கு வசதியாக இருக்கும் என்பதை இந்த சமயத்துல ஏன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு முறையினா சாமிட்டு தான் முறையிட முடியும். நல்லது செய்யும் போது நல்லவற்றை நினைத்து நல்லோருடன் நல்ல நாட்கள் நம்ம சிந்திச்சோம்னா எல்லாமே நமக்கு நல்லதா நடைபெறும். அதாவது நான் கும்பாவுடைய சமத்திலே சொல்லியிருக்கேன், நம்மளுடைய கும்பாபிஷேகம் சித்திர நட்சத்திரம் திங்கட்கிழமையில நடக்குது. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, சித்ரா நட்சத்திரம் பவதி சித்திரம் வேத கர்மா யதசமேத சமுத்தி அப்படின்னு. சித்ரா நட்சத்திரத்துல ஒரு காரியம் செய்தா சமுத்தி அப்படின்னு வேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதம்ங்கிறது எழுதப்படாதது, அதாவது ரிஷிக்கெல்லாம் மேல அதே இருக்கும். அவங்க ஞானங்கள்னால பார்த்து அதை கொடுத்துருக்காங்க. வேதத்தை வந்து ஒரு காலத்துல வந்து வாய் வழியாக செவி வழியாக சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சா இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இப்படிதான் இருந்தது. நம்மளுடைய சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை குறைஞ்சோம்னா ஏசிச்சு படிக்கிற மாதிரி ஆயிடுது. பொதுவா நம்மளுடைய மூளையை வந்து பெரிய விஞ்ஞானியே 3% தான் செலவு பண்றாங்க. அதாவது பெரிய அணுவிஞ்ஞானியா இருக்கக்கூடியவர்களே மூளையை பயன்படுத்தி 3% தான். நம்ம தான் எப்படின்னு பார்த்துக்கணும். ஒரு துளி கூட கிடையாது. அந்த மெமரி பவரை கொடுக்கக்கூடியது அந்த மந்திரங்கள். அந்த மந்திரத்துல அந்த சித்ரா நட்சத்திரத்தை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை தவிர்த்து நம்மளுடைய ஐயாயிரப்பர் கோவில சித்திரோத்சவம்னா பிரம்மோத்சவம் அப்படிங்கிறதா சித்ரா நட்சத்திரம் தான் முழுமையா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வேதத்தை. அப்பேற்பட்ட நட்சத்திரத்தை நம்ம பண்றோம். ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து முடிவு பண்ணது வந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும். அஸ்த நட்சத்திரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பண்றதா இருந்தோம். ஆனா இங்க பேசும்போது அந்த சித்ரா நட்சத்திரமா மாறுது. ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு வந்து கொரோனா லாக்டவுன் போட்டாங்க. நம்ம கிராமங்கள்லாம் பேசும்போது சொன்னாங்க லாக்டவுன்ல வர முடியாது, அதுக்காக தான் மாத்திடுது. ஆனா அஸ்தத்துல நம்ம முடிவு செய்யணும். அஸ்த நட்சத்திரம் முதல் நாள், அடுத்த நாள் பார்த்தா திங்கட்கிழமையோடு கூடி அந்த சித்ரா நட்சத்திரம் வந்திருக்கு. ஏன்னா கும்பாபிஷேகம் செய்யறது நடந்தது நம்ம சிந்திச்சு பார்த்துட்டே இருக்கணும். அதாவது நம்மளால ஒரு காரியம் செய்ய முடியாது. இதே கோயில் இப்ப கட்டிருந்தா 2 கோடி ரூபாய் மேல ஆகும். ஆனா இப்ப உள்ள சூழ்நிலை அறநிலைத்துறை ஒத்துழைப்பு கிடைக்குமாங்கிறது தெரியல. பல நிறைய அதுக்கு ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் செஞ்சு செய்யணும். ரொம்ப பல ஆலயத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. அப்ப ஏதோ அந்த கொரோனா நமக்கு உதவி செஞ்சதுன்னா சொல்லணும். கொரோனா சமயத்தில் நம்ம வேலை விரும்புன்னு செஞ்சுட்டோம். யாரும் நம்ம யாரும் கேட்கல, நல்லபடியா செஞ்சுட்டோம். எல்லாம் நடப்பதே நன்மைக்கு. அந்த காலம் 3 வருஷத்துல நம்ம திருப்பதி ஆரம்பிச்சு செஞ்சுட்டோம். யாராலும் முடியாது. அதுக்கு அன்னதான மண்டபம் ஒரு கோவிலுக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கு. இப்ப நடப்பாதையும் நம்ம போட்டு இருக்கோம். அடுத்த கும்பாபிஷேகம் நடப்பாதை முடிக்கணும். காம்பவுண்ட் சேவை எப்படினாக்க இன்னும் நமக்கு சேஃப்டியா வேணும் இந்த பகுதியில. அதெல்லாம் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லோரும் ஆலோசனை கொடுத்து ஒத்துழைத்து அந்த ஐயனார் மூலியமாக கொங்காளி கற்பு மதுரையன் பாப்பாத்தியம்மன் மூலியமாக நடக்க வேண்டும் என்பதை பிரார்த்தனை செய்து கோபங்களை துவங்க வேண்டும். नमः ओम हिमवजाय नमः ओम महास्त्राय नमः ओम आमरूम शिवाग्नये नमः दानं दक्षवामेहि गरदलमणिः सप्तजिह्वासुदीप्तं याये स्वाहा सुदाभ्यां सकलपरिवृतं कुण्डमध्य शिवाग्नये नमः अवाहादिकमिदाय घटिसंरक्षणार्थं पूर्वे ब्रह्मणे नमः पश्चिमे विष्णवे नमः दक्षिणे रुद्राय नमः उत्तरे ईश्वराय नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः विमाय नमः निर्विदये नमः वरुणाय नमः ओम अघोरास्ताय स्वाहा ओम ह्रूं शिवाग्नये 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 ओम ह्रूं शिवाग्नये ओम
सान्द्रपूर्णां दत्वा तस्मादरिहृतत्वे स्थाप्य सन्दर्पयाम्यहम् अग्निहृतत्वे अस्त्रेण प्रोक्ष्य आधारशक्ते नमः अंधाधनाय नमः महासिंहासनाय नमः हम योगासनाय नमः हम पद्मासनाय नमः ओम विमलासनाय नमः विमलासनस्योर्थे ओम हरिहरपुत्र धर्मसामानाभो तन्नो महापूर्वो शास्ता नमाजानो प्रचोदयान्न महापादयो शास्त्रे नमः सर्वां येषु दिव्यस्य पुष्पैः सुजं लक्षणान्वितम् आलीनं वा बहुजान्घ्रिं ददूर्भे वामहस्तकं लम्बितं दक्षपातुन्दो वेत्रं वै दक्षिणे करे योगपट्टजटामौलिं सर्वाभरणभूषितं शास्तारं सर्वलोकानां भजे हरिहरात्मजं हरिहरपुत्राय नमः विद्यादेहाधेनुमुद्रां दर्शयित्वा अक्षुसमुद्रां दत्त्वा पाद्यायमणार्घ्यानि दत्त्वा आत्मदत्त विद्यादत्त शिवदत्ताधिपते हरिहरपुत्र धर्मशास्त्रे नमः दक्षिणे पूर्णादेव्यासनाय नमः पूर्णाञ्च गणगाभासा मीनोत्पलधरद्युता करणगमगडोपेता दक्षपार्श्वे तु सुस्थिता पूर्णादेवी नमः वाक्यर्घ्यं दत्त्वा उत्तरे ओम ह्रीं पुष्कलादेव्यासनाय नमः पुष्कलादेवी मूर्तये नमः पुष्कलामावभागेतो श्यामवर्णगडस्थलीं किरीटमकुटो वेदां सर्वाभरणभूषितां ओम ह्रीं पुष्कलादेवी नमः वाक्यर्घ्यं दत्त्वा लयाकमप्यच्च ओम ओम ईशानमुद्राय नमः हे तत्पुरुषोत्तराय नमः ओम अघोरहृदयाय नमः ओम हे महादेवगुप्ताय नमः सद्योजातमूर्तये नमः महाप्रजाय नमः भीमसेनाय नमः ओम शिवाय नमः हिंदवजाय नमः ओम वेदशास्त्रे नमः ओम ईशानशास्त्रे नमः ओम ब्रह्मशास्त्रे नमः ओम विष्णुशास्त्रे नमः आवाहयामि दत्ता पंचमावरणे ओम महाभद्राय ओम नमः ओम सिद्धे ओम नमः ओम जगाय ओम नमः ओम खंडाय ओम नमः ओम पासाय ओम नमः ओम अग्निशाय ओम नमः ओम गदाय ओम नमः ओम विष्णुराय ओम नमः ओम पद्माय ओम नमः ओम चक्राय ओम नमः पद्मा देवतां सत्वाहारि दत्ता ये देवतां मंत्रासनमध्यपरजयिताय सांगाय जायदाय सर्वतत्वाय पुजे महाशास्त्रे नमः अस्मिन् वृन्दस्थिराभूषण नमः वाक्यर्घ्यं दत्त्वा श्रोमादाय होमे सद्योजावामदेवाभ्यं सह वामदेवागुराभ्यं सह अघोरतत्पुरुषाभ्यं सह तत्पुरुषईशानाभ्यं सह सद्योजावामदेवागुरतत्पुरुषईशानेभ्यं सह हिरण्यागणाभ्यं सह नरकाभ्यं सह रक्ताभ्यं सह कृष्णसुप्रभाभ्यं सह सुप्रभाजरकाभ्यं सह जरकारूपाभ्यं सह हिरण्यागणकारक्तागृष्णा सुप्रभाजरकारूपेभ्यं स्वाहा शिवाग्ने स्वाहा शिवाग्ने स्वाहा शिवाग्ने स्वाहा हरिहरपुत्राय स्वाहा हरिहरपुत्राय स्वाहा हरिहरपुत्राय स्वाहा ओम आं ह्रूं हरिहरपुत्र शिवाग्नेभ्यां स्वाहा शिवाग्ने स्वाहा नाडी संधानार्थं दशाभुजि भूत्वा आवाग्नादि मुद्रान्तम्बरस्य अर्घ्यं दत्त्वा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमत सुरुजो वेणावः सपुत्र्या उपमाद्य वृष्ठाः सतस्त्यजो निमसतस्य विवः पिता विराजा वृषभोरहीणाम् अन्तरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्सम् ब्रह्मदन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयते ब्रह्म विश्वमिदं जगते ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगते ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिंशते ब्रह्मण्येन्द्र प्रजापति ब्रह्मण्यः विश्वा भूतानि यदन् पिण्डं नलरगुं सुवीरं ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनां वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो मारुतं पृक्षयिषिषे आवो राजा नमध्वरस्य रुद्रगुं होदारगुं सत्ययजगुं रोदस्योः
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि अपरिवार देवताभ्यो विशेष धर्मार्थम अष्टोदशतं मुक्ता ओम जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले सुजुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्ति भक्तवर्णां कामिको भक्वजे श्रियो चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ति विश्रियं लोके देवजुष्टामुदारां भक्तदेवीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणस्य धां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वर्णे पिपाशामलां ज्येष्ठमलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमर्भ्यञ्च सर्वारण्यकमेगृहात् द्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टां करि आर्द्रायि अस्करिणीमिष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां जन्मजे लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां मावह जातवेदो लक्ष्मीं मणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योत्पाने विश्वेयं पुरुषाणगो तद्दशांशतो ब्रह्मावी उद्गा ओम ओम ईशानमूर्धादिभ्य स्वाहा 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 ओम ईशानमूर्धाय स्वाहा हरिहरपुत्र शास्त्रे स्वाहा अभिवार देवताभ्यो அர்ச்சகர் வரவே இல்லை கொஞ்சம் வந்து கதவு திறந்து போவாங்க குளித்து வைக்கிற கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் यथाशक्तिवा भूत्वा यस्य प्रयतो भूत्वा दुर्यादाज्यमन्वहम् सूक्तं पदं धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते ततो मन्त्राणां दर्पणदीपणे विदुध्यादे एकैकाहुतिदानेन दर्पणम् ॐ महां हरिहरपुत्राय धर्मशास्त्रे स्वाहा ओम ओम ईशानमूर्धाय स्वाहा ओम हरिहरपुत्राय धर्मशास्त्रे फट् ओम 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 ईशानमूर्धाय फट् ओम हरिसादाय त्वया दुष्ट ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया मे अश्विना विभावा दत्ता पिङ्गवाना सामां मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् भूषणं भगम् अहं ददामि द्रवीणं हविष्मादे सुप्राव्ये यजमानाय संवते अहमेव स्वयमिदं वदामि दुष्टे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता
आर्द्रश्चिद्यं मन्यमानः पुरश्चिते राजाचिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भग सत्यराधः भगेमान्यपुरवर्धनः भगप्रणोदयगो इंद्राय पूर्वी ऋषसो दुहानाः इंद्रयक्षणे प्रणवेत शिक्षति उपेक्षदामिनः संवशायति भूयो भूयो ऋग्विदस्य वर्षयन्ने अभिन्ने खिल्ले दधाति देवयम् नतान सन्ति नतभाति तस्करः नैना अमित्रो व्यतिराजदर्शति देवानिष्ठयाभिर्यजते ददाति च दोगिताभिर्ददते गोपतिः सह तथा ब्रह्माणेणुकादोऽश्नुते असत्यस्कृतस्तभयं निताभि भुगाजमभयन्तस्य तामो गावो मध्यस्य वितरन्ति यज्वनः गावो भगो गाव इन्द्रो मे यच्छात् गावस्तोमस्य प्रथमस्य भक्षः माया गावस्य जना सैन्द्रः सावी धृता मनसा जिरीन्द्रम् भूयङ्गावो मेदयथा विसञ्जते अश्लीलन्ति कृथा दुःखदीकम् भद्रं गृहं कृतसभासु प्रजावती सूर्यवसं विशन्तीः शुद्धा अपस्तु प्रपाने पिबन्तीः आवस्तेन ईशतमाघसकुप्तः परिमोहेति रुद्रस्य विद्याम्भो दिवो धर्मपृथिव्यास्तेषाः जगतो विष्णुपत्नी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ वन्दे
अघोरास्त्राय स्वाहा ओम श्रीं फं सुमंबत पादवदास्त्राय स्वाहा भूतान बंध बंध विज्ञान चिंते चिंते यादे निकर्तरि करता भक्तान भक्ष भक्ष आला जिक्के कालवत्रे कालदमश्रे जयहिं स्वाहा ओम शिव शिव क्षुरिकास्त्राय स्वाहा ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि अंग प्रचोदयात् स्वाहा என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே இப்போது நிறைவாக மகாபூர்ணாவதி நடைபெறும். தொடர்ந்து தீபாவளி செய்யப்பட்டு நம்மளுடைய ஐயனார் மற்றும் மதுரையில் கொங்காணி கரசர் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்து கேட்டு அனைத்து மூர்த்திகளுக்கும் பாலாபிஷேகம் செய்து நிறைவாக கலசாபிஷேகம் செய்கிறோம். பார்க்கலாம். ओम पूर्णाहुति उत्तमं ज्योति
ओम आम भवत्सदेवस्य पुत्राय नमः सर्वस्वदेवस्य पुत्राय नमः ओम आम ईशानस्य देवस्य पुत्राय नमः देवस्य पुत्राय नमः ओम आम रुद्रस्य देवस्य पुत्राय नमः देवस्य पुत्राय ओम नमः आम भीमस्य देवस्य पुत्राय नमः देवस्य पुत्राय नमः देवस्य पुत्राय नमः पूर्णाम्बा पुष्कलाम्बा समेताय हरिहरपुत्र धर्मशास्त्र स्वामिने नमो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पार्चनं समर्पयामि पूगी मण्डलमायुक्तं नागवल्लीतलेरुकम् सर्वोर्धर्मनित्यं दामोदरं प्रसक्यदा अमृतोपहारं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पाण्डवदी चन्द्रमालापां पुष्पं पुष्पवाण्डवदी एवं वेद आयतनवान् भवति अभ्यावर्तध्वमुपमेत साकमयं शास्ताधिपतिर्वस्तु अस्य विज्ञानमनसगौरवत्वमिमं पश्चादुर्देवाधर्वे हरिहरपुत्र धर्मशास्त्र स्वामिने नमो नमः सपरिवार देवताभ्यो नमो नमः वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवदूतं ओदारं ददातः ये पुरोहित्वा वायुवस्य देवोवस्य विदा प्राप्ते चरणाय कर्मणे आज्ञायाहि वीतये ज्ञानो अप्यदाहरे निरोधास्य वर्गिहि शर्मा देवी अभिषेक आपो भवन्तु वीतये अन्यवाहरणीयं प्रणीय श्रेयोन्यमग्निं प्रणयते मेघाक्षरं ब्रह्मं व्यक्ताव्यक्तगुंसराधनं हरि ओम् आशाग्रगेशं शास्तारमिट्टवरं शरणं प्रपद्ये शिवादृचित्रं बलम् மாதர் பிறை கண்ணியானை மலையான் மகளுடும் பாடி போதுடு நீர் சுமந்தேத்தி புகுவாரவர் பெண் புகுவே யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயாறு அடைகின்ற போது காதல் மட களிறு வருவன கண்டேன் அவர் திருப்பாதும் கண்டறியாதன கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன உலகளாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மழி வேடியில் அழகில் ஜோதியில் நம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்க்கை வணங்குவான் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒருளாலும் தளர்வரியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சம் இல்லா இடம் தரும் நல்லனை எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவருக்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமிகளை கண்களே சந்ததம் பந்த தொடராலே சஞ்சலம் துஞ்சி திரியாதே கந்தனன் என்று உனை நாளும் கண்டு கொண்டிடுவேனோ தந்தையின் கொம்பை புணர்வோனே சங்கரன் பங்கில் சிவை பாலா செல்திடன் கல்டி கதிர்வேலா தெல்பரங்குன்றில் பெருமானே உன்னை கண்டு கொண்டிடுவேனோ தென்பரங்குன்றில் பெருமாளே வான்முகில் வளாது வேக மணிவளம் சிறக்க மன்னன் கோன்மொழி அரசு செய்க குருவிடாதவர்கள் வாழ்க நான் மறையரங்கள் ஓங்கனத்தமும் வேள்மல்க மென்னகுள் சிவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து சமஸ்த சன்மங்களானி சந்தோ அஸ்ய தர்மஸ்ய உத்தரோத்தராபிவிருத்திரஸ்து சர்வம் ஸ்ரீ பூர்ணாம்பா புஷ்கலாம்பா சமேதாய ஹரிஹரபுத்திர धर्मशास्त्र स्वामिनः पादारविन्दार्पणमस्तु
அப்படியே இங்கேருந்து பாருங்க ஐயனாருக்கு அபிஷேகம். அப்புறம்